Students, we are continuing the next topic, that is loss of biodiversity. Completely a theory topic, but this is very important for class 12th examination, and we'll see many of the examples which are regularly coming in the NEET also. So just be careful while learning the concept. Loss of biodiversity, I don't think this is needed to be explained what is the meaning of loss of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी आप जानते हो बेहतर तरीके से. बायोडाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? द डाइवर्स रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल हैबिटेट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं. द बायोडाइवर्सिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल्फ सस्टेनिंग इन्वायरमेंट. अपने आप चलने लायक इन्वायरमेंट को बनाने के लिए, इन्वायरमेंट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत होती है. ओके, सो बट nowadays and from the ancient most time period we are observing the continuous loss of biodiversity. So what are the factors of loss of biodiversity? What will be the reason of biodiversity loss? What will be the effect of biodiversity loss? We'll see in the today's topic. So here we are starting with the loss of biodiversity without making an introduction कि क्या होता है biodiversity और क्या होता है loss of biodiversity. आप बेहतर तरीके से समझते हैं biodiversity loss मतलब elimination of the biowealth or biodiversity wealth or elimination of the biological wealth is called as biodiversity loss. अब biological wealth का एलिमिनेशन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, फ्रॉम द एंशियंट टाइम पीरियड चला आ रहा है, बट वी कैन नॉट से कि दिस वाज दैट मच फास्टर दैट वी आर ऑब्जर्विंग नाउअडेज. सो बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट इज डिक्लाइनिंग रैपिडली, वी अंडरस्टैंड वेरी वेल. और इस समय ऑल द रिसर्चर्स, ऑल द इन्वायरमेंटलिस्ट, ऑल द साइंटिस्ट आर वेरी मच अवेयर, आर कंसर्न अबाउट दैट, और हम भी उसी चीज़ के लिए कंसर्न है. एंड इवन वी आर डिस्कसिंग सो मैनी टाइम्स कि यार प्रॉब्लम इज देयर, problem is there, but we are not discussing about the solution. So biological wealth of our planet is declining rapidly, and the extinction of a particular species result in the complete loss of its genetic information. क्या असर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का ये समझना है अपने को. हम पहले से जानते हैं कि इम्बैलेंस हो जाएगा, इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग नहीं रह जाएगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लॉस हो जाने से उसका जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, एक लिंक टूट जाती है. द फूड चेन इज कंप्लीटली डिस्टर्ब, द एनर्जी फ्लो मॉडल इज कंप्लीटली डिस्टर्ब, द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम विल कंप्लीटली डिस्टर्ब. सो एक्सटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज रिजल्ट इन द कंप्लीट लॉस ऑफ इट्स genetic information, will miss the complete information pathway, complete flow of information by the elimination or extinction of species. I think extinction तो पता है आपको, the complete elimination, the full elimination of the species when the species is not present on the earth, on habitat, is called as extinction. अब बायोडाइवर्सिटी लॉस कितने तरीके से हो सकता है, that we have to understand. How many type of extinction is there, how many type of the biodiversity loss is there, we have to understand. The first type of extinction is called as natural extinction. Natural extinction, natural forces के through continuous होने वाला extinction. Nature, हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी है. डार्विन की थ्योरी में हमने देखा था कि नेचर इज ऑलवेज पुटिंग सम चेक पॉइंट्स ओवर द ऑर्गेनिज्म, whether they are perfect or imperfect. If the organism is considered as the perfect, then they are allowed to participate or continuously grow in the earth, in the habitat, in the ecosystem. If they are not able to clear the exam of nature, then they are not allowed to sustain. तो नेचर के थ्रू भी वहाँ पे चेक पॉइंट लगाए जाते हैं. तो नेचुरल फोर्सेस के थ्रू होने वाला एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड एज नेचुरल एक्सटिंक्शन. सो ड्यू टू द चेंजर, और नेचर कैसे एक्सटिंक्शन लाती है, कैसे चेक पॉइंट लगाती है. नेचर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इटसेल्फ, नेचर इज एवर चेंजिंग, इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग. तो जैसे जैसे नेचर आगे बढ़ती है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट आगे बढ़ता है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं. So the organisms which are able to maintain themselves as per the changing environment, they are selected over the organisms which are not being able to adopt themselves. तो जो adopt नहीं कर पाते हैं, they are being eliminated out, extinct हो जाते हैं, and they are being replaced by those organisms which are being better adopted than the organisms which are not being selected over there. So some of the species disappears. कौन सी disappear होंगी? जो कि अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जिनके अंदर चेंज करने की कैपेसिटी नहीं थी. while some of the species are more adopted and these replaces the species which are less adopted, which are less premier, जिनमें कैपेसिटी नहीं थी सस्टेन करने की. ओके,
Moving on to the next point, the loss of species by the natural phenomena are natural extinction or natural geographical past occurs so at very slow rate. बहुत slow rate है natural extinction का, और इसको the loss of species in the geographical past or geological past occurs at very slow rate. ये खास पॉइंट है, ध्यान रखना है कि नेचुरल एक्सटिंक्शन बहुत स्लो रेट पे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, पता नहीं चलता है कौन सी स्पीसीज आई और कौन सी स्पीसीज चली गई. दिस इज व्हाट द एक्सटिंक्शन, नेचर अचानक गायब कर देती है. दिस इज व्हाट द नेचुरल एक्सटिंक्शन, पता ही नहीं चला कि ये स्पीसीज थी भी. दिस इज व्हाट द नेचुरल एक्सटिंक्शन. द मास एक्सटिंक्शन, एक साथ लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, extincted, eliminated from the ecosystem, that is called as mass extinction. So large number of extinctions due to the catastrophes. कैसे होगा mass extinction? Okay, mass extinction का मतलब large number of species are being abolished, destroyed, eliminated by the nature itself ड्यू टू सम ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक फैक्टर्स. कुछ ऐसे कैटास्ट्रॉफिक फैक्टर्स आते हैं जिसके कारण अ ग्रेट लॉस ऑफ द स्पीसीज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. द ग्रेट लॉस ऑफ स्पीसीज ऑब्जर्व्ड का मतलब अब जस्ट टेक एन एग्जांपल, वी ऑल आर इंडियन. अभी साल भर पहले हमने देखा था केदारनाथ ट्रेजिडी हुई थी. केदारनाथ ट्रेजिडी में खड़े खड़े पूरा का पूरा केदारनाथ बह गया ड्यू टू द लैंडस्लाइड एंड हैवी रेनफॉल. दैट वाज अ ग्रेट फ्लड, नथिंग वाज लेफ्ट बिहाइंड. This is what the mass extinction. When forest fires are there, the forest fires, Amazonian rainforest, so many forests are being trapped under the forest fire, और उसमें पता नहीं कितनी plant species, animal species are going to eliminate out due to that. When earthquakes are there, many of the species of the plants and animals are abolished, eliminated, like that. So this is what the volcanic eruption. So all these forces are leading to the mass death or mass toll or mass elimination of the population or species from the ecosystem. This is what called as mass extinction. Till now this is reported the 5 episode of mass extinction has been occurred. Till now, till date, when we are reading, when we are learning, लगभग 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं. मूविंग ऑन टू द लास्ट एपिसोड और लास्ट कॉज, द लास्ट टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, द रीसेंट एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन. अभी तक 5 हो चुके थे, अब ये 6वां एपिसोड चल रहा है. ये क्वेश्चन पूछा गया इन योर नीट एग्जामिनेशन एंड इन द सीबीएसई एग्जामिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन? तो 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. माय डियर चाइल्ड, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्सटिंक्शन, ह्यूमंस की एक्टिविटीज के कारण होने वाला एक्सटिंक्शन, वेयर एक्सटिंक्शन इज कॉज्ड बाय द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी? ओवर एक्सप्लॉयटेशन. वी आर गोइंग टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेस इन अनकंट्रोल्ड मैनर. The hunting, the pollution, many of the activities of humans are causing the deletion of the species, elimination of the species, elimination of the communities from the ecosystem. So anthropogenic extinction सबसे recent है, अभी यही extinction चल रहा है. We have already discussed कि the anthropogenic extinction is referred as the 6th episode of extinction. Let us take some of the example. The colonization in the tropical Pacific island result in extinction of 2000 species of the native birds. You can understand how dangerous this was. The colonization in the tropical Pacific island, पैसिफिक आइलैंड में कॉलोनाइजेशन हुआ जिसके कारण वहाँ की नेटिव बर्ड की 2000 से ज़्यादा स्पीसीज पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई. दे हैव अंडरगॉन इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. वी डिड दिस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी मस्ट अंडरस्टैंड. IUCN रेड डाटा बुक 2004 में पब्लिश हुआ था. उसके डाटा के हिसाब से द टिल द टाइम in last 500 year 784 species are being abolished, are being eliminated, are being extincted. 2004 में पब्लिश रेड डाटा बुक फ्रॉम द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. एक बुक पब्लिश करता है जिसमें सारी एक्सटिंक्टेड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज की इंफॉर्मेशन होती है. दैट बुक इज कॉल्ड एज रेड डाटा बुक. ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक इज पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज बीइंग पब्लिश बाय IUCN.
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये पूछा ही पूछा जाता है। रेड डाटा बुक के बारे में ये भी पूछा जाता है कि नेम द बुक और नेम द लिटरेचर वेयर वी कैन फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ एलिमिनेटेड और एक्सटिंक्टेड species. So red data book is providing all the details of the eliminated or extincted species. So IUCN क्या करता है, रेड डाटा बुक पब्लिश किया, उसने पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का एविडेंस प्रोवाइड किया है। रेड डाटा बुक के हिसाब से ध्यान रखना, आप जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। According to the red data book, the recent extinction includes the dodo, is a bird from Mauritius, quagga from the Africa, thylacine in the Australia, Steller sea cow from the Russia. Steller sea cow पूछा गया है, dodo पूछा गया क्वेश्चन है। So Steller sea cow from the Russia, dodo from the Mauritius, quagga, Africa, thylacine. These are only few examples. Many more are being eliminated in the recent episode. ध्यान रखना है, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन इज 100 to 1000 times faster than the natural extinction. Natural extinction was very much slower process, but anthropogenic extinction is the fastest process. बहुत फास्ट है, उससे 100 से 1000 गुना फास्ट है। और ऐसा एस्टिमेशन है, कहा जाता है कि जब तक हम ये टॉपिक पढ़ के निकलेंगे तब तक लगभग 1000 से ज़्यादा स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो चुका होगा, अननोइंगली और अननोइंगली। Okay, so let us take a look on the result of the loss of biodiversity. अगर biodiversity loss होता है तो उसका क्या असर पड़ेगा। The decline in the plant production or the productivity, plant production या plant productivity कम हो जाएगा, तो आप समझते हैं biomass production कम हो जाएगा। If biomass production is reduced means what? The primary producer reduce, so secondary the primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, the flow of energy will be disturbed, environment का balance बिगड़ जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा। Reduce the resistance of the environment perturbance like drought and flood. अगर biodiversity loss होता है तो many of the species are there, those who are facing those who are preventing us from the flood, drought, and if these species are going to eliminate out, so we may face the challenges of these things again and again. और फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वी आर ऑलवेज ऑफरिंग द प्रेयर टू द गॉड, प्लीज सेव अस फ्रॉम द ड्रॉट, प्लीज सेव अस फ्रॉम द फ्लड। तो एंड वी are only responsible for such activities, so we need not to go for such kind of the activities. The third one is increased variability of the ecosystem processes like productivity, water use, pest and disease cycles. ये सारी चीजें हो जाएंगी if the biodiversity loss is there. Okay, moving on to the next point of the topic. Okay, causes of biodiversity loss, very important question my dear student for you for your final examination. इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बी केयरफुल व्हाइल लर्निंग दिस वन। सो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, दिस इज द टाइम व्हेन वी आर फेसिंग द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। और क्यों ऐसा हो रहा है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं आज के टॉपिक में कि ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमंस is going to prove himself as a boss of the universe, boss of the earth, and due to the nature of the human behavior we are facing the challenges, we are facing the problems. Okay, so human activities के कारण ही, humans के improvisation के कारण ही, humans के self sustaining होने के कारण ही, self centric होने के कारण ही we are facing the accelerated rate of extinction nowadays. This is what the 6th episode of extinction. तो क्यों तेज हो रहा है extinction? Due to the human activities. और इसके साथ में 4 मेजर फैक्टर्स बताए जाते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड अंडर द 4 डिफरेंट फैक्टर्स, 4 डिफरेंट और 4 मेजर कॉजेज ऑफ द biodiversity loss. These 4 major causes are combinedly called as the evil quartet, evil दुश्मन, शैतान, शत्रु, क्वार्टेट, 4 शैतान। तो प्रकृति के 4 दुश्मन कौन से हैं वो अपने को देखना है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस इज गोइंग ऑन। व्हाट आर द evils, what are the enemies of the nature? They are listed under the 4 categories. So evil quartet का मतलब 4 दुश्मन प्रकृति के, 4 शैतान, 4 शत्रु which are going to affect the health of the nature, health of the biodiversity. So first one, the first quartet, the first evil under the quartet is the habitat loss and the fragmentation. Habitat loss and fragmentation.
हैबिटेट लॉस समझ में आता है कि द हैबिटेट ऑफ द मैनी ऑफ द स्पीसीज आर बीइंग डिस्टर्ब बाई द ह्यूमन एक्टिविटीज़. फ्रेगमेंटेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण उस हैबिटेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया है. दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देम देयर इन दोज स्मॉल फ्रेगमेंटेड हैबिटेट. माई डियर चाइल्ड, माई डियर स्टूडेंट, ये आप पढ़ सकते हो आसानी से, बट आई एम एज अ टीचर आई एम जस्ट प्रोवोकिंग यू. हम घबराते हैं, हम हर समय न्यूज़ में पढ़ते हैं द स्नेक्स आर बीइंग फाउंड इन अवर डोमेस्टिक एरियाज. अपने घरों में सांप निकलता है, हम देख के डर जाते हैं, उसको मारने के लिए दौड़ते हैं. न्यूज़पेपर्स में पढ़ा जाता है कि द लियोपार्ड और द पैंथर्स और द टाइगर पग मार्क इज ऑब्जर्व देयर इन द फार्मिंग एरियाज. कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा गया कि किसी बच्चे को किसी तेंदुए ने पकड़ लिया, किसी चीते ने पकड़ लिया. हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट, द रीज़न बिहाइंड दैट? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न बिहाइंड दैट कि वी हैव कैप्चर्ड देयर हैबिटेट. तो वेयर दे कैन गो, हमने उनकी जगह को कैप्चर कर लिया है. आपने कभी पूछा हो अपने एंसेस्टर से, अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से, वी आर लिविंग हियर वेयर द फॉरेस्ट वर देयर. फॉरेस्ट के जाने के कारण, फॉरेस्ट को हटा देने के कारण हमने उनके घरों में कब्जा कर लिया. तो नाउ दिस इज their responsibility. they must search out the food, they must search out the shelter. और वो उसी चक्कर में they are leading toward the human colonization, human colony की तरफ आते हैं. so habitat loss का मतलब उनके habitats का, ऑर्गेनिज्म का, स्पीसीज के habitats का खत्म हो जाना. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन हमने देख ही लिया. फॉरेस्ट को जला रहे हैं हम, पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, नदी सुखा दी हमने, बांध दिए हैं. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं. कैसे हैबिटेट लॉस होता है? ड्यू टू द कटिंग ट्रीज. जो बर्ड्स रहते थे ट्रीज़ के ऊपर, उसको ट्री कटिंग के साथ में हटा दिया. वेट लैंड को पूरी तरीके से भर दिया फॉर द पर्पज़ ऑफ फार्मिंग एंड कॉलोनाइजेशन. प्लोइंग अ ग्रास लैंड, ख़त्म कर दिया ग्रास लैंड को. बर्निंग अ फॉरेस्ट. The natural habitat of species is changed or destroyed. The natural habitat of species is changed or destroyed. इन सारे फैक्टर्स के कारण, चाहे पेड़ को काटना हो, वेटलैंड को भरना हो, ग्रास लैंड की प्लोइंग हो, बर्निंग द फॉरेस्ट, ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ह्यूमंस ने नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब कर दिया है. एंड दे आर बीइंग अफेक्टेड बाय सच एक्टिविटीज एंड दे आर अंडरगोन इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. ह्यूमन एक्टिविटीज़ का या हैबिटेट लॉस का एक बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं अपन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कुछ समय पहले तक 14% ऑफ द लैंड एरिया को कवर करता था, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन दिस इज़ रिड्यूस टू द 6%. तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ द organisms which are inhabiting there are being eliminated. So 14% of the total land area of the earth was covered by this one, but that is being reduced to the 6%. 8% की गिरावट आई है. तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी स्पीसीज रही होंगी they are being eliminated. Second example, due to the human activities or habitat loss, the many of the habitats are being affected by the pollution because the dangers to different habitat, और उसके कारण भी habitat loss possible हुआ है. so degradation of the many habitat by the pollution threatens the survival of species. if the habitat is being lost, so there is no chance to survive the species. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं कि वी आर यूजिंग द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर द पर्पज ऑफ फार्मिंग. सो दीज पेस्टिसाइड्स आर गोइंग टू लिंक टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी ऑफ द बर्ड्स. पेस्टिसाइड उस समय तो यूजफुल होते हैं, बट दीज पेस्टिसाइड्स में अफेक्ट बैडली टू द पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड्स. फिशेस ईटिंग फिशेस. Okay, so pesticides link decline of the fish eating birds and the falcon birds. The lead poisoning in the duck, swans and the cranes. ये कुछ एग्जाम्पल हैं डिग्रेडेशन ऑफ द मैनी हैबिटेट्स बाय द पॉल्यूशन. ये तो बात हुई आपकी हैबिटेट लॉस की. फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण किसी बड़े हैबिटेट का छोटे छोटे हैबिटेट के फॉर्म में बढ़ जाना. द फ्रेगमेंटेशन, कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ द लार्ज हैबिटेट इनटू द स्मॉल हैबिटेट, breaking down of the large habitat into the smaller part due to the human activities is called as fragmentation. So large habitat broken into the smaller by the fragmentation and due to the human activities. Human activities क्या है? Human अपने lifestyle को आरामदायक बनाने के लिए, improvise करने के लिए they are exploring the nature again and again. कैसे?
टू डेवलप द सेटलमेंट, कॉलोनीज बनाना है, रोड्स बनाना है, कैनाल्स बनाना है, डैम्स बनाना है, और इन सभी एक्टिविटीज़ में क्या अफेक्ट होगा? the natural resources, the forest, the trees, everything will be affected by that. So by establishing a colony, the large population of the forest is being divided into the small population, small fragments. So बीच का जो हिस्सा होगा that will affected by the human settlement, that will affected by the human activities and may lead to the extinction. So that is what the fragmentation. So this affect badly द माइग्रेटिंग एनिमल्स. सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ता है? माइग्रेटिंग एनिमल्स के ऊपर, बेसिकली द मैमल्स एंड द बर्ड्स. मूविंग ऑन टू द सेकेंड इविल ऑफ द मास, सेकेंड इविल ऑफ द एक्सटिंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बेतहासा उपयोग करना, बेहद उपयोग करना, इस हद तक उपयोग करना कि दैट कैन नॉट बी रिन्यूड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Exploitation is permissible by the nature, but over exploitation is always dangerous. Exploitation is permissible by the nature, but over exploitation is always dangerous. What is the meaning of over exploitation? Over exploitation means the use of natural resources beyond the limit of renewing. Are you getting my point? Use of resources beyond the limit of रिन्यूएबल. सो रिन्यूएबल रिसोर्सेस या रिन्यू होने की कैपेसिटी से ज़्यादा किसी भी रिसोर्स का यूज़ करना कहलाता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. और ये तभी पॉसिबल है, नेचर परमिट्स अस टू यूज़ फॉर आवर नीड, बट द ह्यूमंस आर in the greed. So when human needs convert in form of the greed, that time the over exploitation come in existence. So when need turns into the greed, that leads to the over exploitation of the natural resources, and resources should not be exploited. That's what we have discussed. And due to the over exploitation, the size of population is reduced. एग्जाम्पल इसके हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन से एलिमिनेशन के. डोडो, स्टिलर सी काउ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है. डोडो, स्टिलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, चीता, द हेल्थ हैन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल फॉर द ओवर एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट वन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन. माय डियर स्टूडेंट, जस्ट गो फॉर दिस वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ नीट एंड द योर एग्जामिनेशन. हमेशा एग्जाम्पल पूछा जाता है इससे कि ये इसके साथ में या इसका क्या रोल रहा है. तो जस्ट गो विद दैट. एलियन स्पीसीज इन्वेजन. सो एलियन स्पीसीज का मतलब होता है द स्पीसीज विच इज़ इम्पोर्टेड टू द इंडिजिनस प्लॉट. जो नेटिव एरिया में बाहर से आई हुई इम्पोर्टेड स्पीसीज को अपन कहते हैं एलियन स्पीसीज है. दोज आर नॉट non-invasive species. So new species in any of the geographical area are called as एलियन स्पीसीज. एक्जोटिक है, नॉन नेटिव है, इम्पोर्टेड स्पीसीज हैं, किसी दूसरे नेटिव से आई हुई हैं, कहीं बाहर से आई हुई स्पीसीज हैं. दोज आर कॉल्ड एज एलियन स्पीसीज आर इन्वेसिव स्पीसीज. सो एलियन स्पीसीज के इन्वेजन से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. एंड इफ द एलियन स्पीसीज आर हैविंग मोर एडॉप्टेबिलिटी देन द लोकल आर नेटिव आर इंडिजिनस स्पीसीज, so they are going to cause a great threat to the local species. They are, even though they are leading to the elimination or extinction of the local species also. Okay, so moving on to the examples of the alien species invasion. First example, the Nile perch, a predator fish that is being introduced in the Lake Victoria of East Africa. Word to word याद रखना होगा आपको. A Nile perch is a predator fish which was introduced into the Lake Victoria of the East Africa. It eliminates the native cichlid fish. पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि नाइल पर्च के आने से क्या असर पड़ा था. तो नाइल पर्च हैज़ अफेक्टेड द पॉपुलेशन ऑफ चिकलेट फिश. तो ये ध्यान रखना है नाइल पर्च और चिकलेट फिश का रिलेशनशिप. कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, अपने देश की बहुत बड़ी समस्या, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, दैट वाज unwillingly imported with the wheat there in 1962 when the India were facing a big drought. That time that was imported with from the America, और अमेरिकन ब्रीड है. वहाँ से आने के बाद हम देख रहे हैं अपने देश में दिस इज कम्प्लीटली डोमिनेटिंग द लोकल हर्ब्स एंड श्रब्स. जहाँ कहीं भी आप देखेंगे वी आर ऑब्जर्विंग द कैरेट ग्रास, दैट इज पार्थेनियम. So next one is lanthanum. This is a tropical this is a shrub from the tropical America that introduced accidentally in India. अपनी इंडिया में ये भी accidentally आया था from the America, but it has taken the wide occupants, it has taken the wide availability of itself
इन मैनी ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, और जहाँ कहीं पे भी ये होता है तो दूसरी स्पीसीज को, दूसरे हब्स को, दूसरे सब्स को वहाँ से हटा देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है. तो लैंटेना इज अनदर एग्जाम्पल. पहला हमने देखा था नाइल पर्च, सेकेंड वन कैरेट ग्रास, थर्ड वन लैंटेना. इकॉर्निया क्रैसिपिस, द वाटर हाइसिंथ, अर्लियर आल्सो वी हैव डिस्कस्ड. इसको इसकी खूबसूरती के चक्कर में ब्रिटिशर्स हैज ब्रॉट इट इनटू द इंडिया देयर इन द कोलकाता. इतना खूबसूरत था, इसकी खूबसूरती के चक्कर में लाए थे. द वाइट फ्लावर्स ऑफ द वाटर हाइसिंथ और इकॉर्निया क्रैसिपिस वर वेरी ब्यूटीफुल, एंड दैट इकॉर्निया इज सो डोमिनेटेड एंड इज हैज कवर्ड ऑल द एक्वेटिक बॉडीज एंड क्रिएटेड अ kind of biggest problem for the aquatic resources in our country. We are facing to remove out that Eichhornia crassipes, और इसके कारण wherever the Eichhornia is there, that is going to reduce the water quality. Due to that reduction in the water quality, the aquatic plants and animals of that region are going to be died. So this is a challenging situation. You can understand the problem thereon. African catfish Clarius is introduced in India, and that has been a threat for the Indian native catfishes. So these all are the example for the alien species invasion, very important. Next one are the last of the evil quarrets, the co-extinction. Co-extinction एक ऐसा event है जहाँ पे if the two species are obligately relating with living with each other, when two species are obligately living with each other, so if one species is going to be eliminated, so next one is automatically going to be eliminated out. दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ में इतने क्लोज एसोसिएशन में है कि अगर एक हट जाए तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी. मीन्स हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए. इफ वन स्पीसीज इज एलिमिनेटेड तो दूसरी स्पीसीज भी अपने आप खत्म हो जाएगी. दैट इज व्हाट एन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, एक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है. सो व्हेन वन स्पीसीज गेट्स एक्सटिंक्टेड ड्यू टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड एज कोएक्सटिंक्शन. एक साथ दोनों स्पीसीज का एक्सटिंक्ट हो जाना. अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई तो दूसरी स्पीसीज अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगी. एग्जाम्पल फॉर दैट इज प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म. प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप जानते हैं. ईच एंड एवरी प्लांट इज हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनेटर. सपोज दैट पॉलिनेटर इज बीइंग eliminated, so plant will also be eliminated after some time. Or if the plant is being eliminated, so pollinator will not survive in absence of that particular plant. So plant pollinator mutualism is very much clear to you all. Plant pollinator mutualism का मतलब यदि plant खत्म हो जाएगा तो pollinator will not survive, तो pollinator eliminate हो जाएगा. If pollinator is being eliminated, so plant will not be survived. Even though many of the symbiotic association, mutual association we have seen, if one organism is there, suppose rhizobium is being eliminated, so there will be no root nodule formation and the nitrogen fixation will not occur, and that will lead to the finally the elimination, but slow elimination of the crop thereon. So this is what the co-extinction. So ये चारों फैक्टर आपको समझ में आया. The first of evil quarret is the habitat loss and fragmentation. Second one is the over-exploitation. Third one is the alien species invasion. The fourth one is co-extinction. Habitat loss, fragmentation पहला था जिसमें habitat खत्म होता है, fragmentation होता है due to the human activities. Over-exploitation, once again the humans are responsible for that one. Then the alien species invasion, कहीं ना कहीं humans वहाँ पे भी indirectly involved हुए. And co-extinction, this is what the natural event is. तो हर जगह हमने देखा ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ द इन्वायरमेंट, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज हैज टेंस आर फर्स्ट टेंस. सो वी नीड टू थिंक अपॉन दैट कि हाउ कैन वी कंजर्व, व्हाट इज अवर रोल इन द नेचर, व्हाट इज अवर रोल इन कंजर्विंग द नेचर. we should not feel bad to think upon that कि we are the most bad evil of the nature or environment. Okay, moving on to the next point of the topic, susceptibility of extinction. Susceptibility to extinction. Susceptibility to extinction का मतलब ये होता है कि some of the species are more prone toward the extinction while some of the species are less prone to extinction. More prone to extinction मतलब जिनका extinction ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा होता है, तेज़ी से होता है, those are called as susceptible. और जिनका कम होता है they are called as less susceptible. तो जो more prone है, more susceptible है for the purpose of extinction,
सो देयर प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनमें? लार्ज बॉडी साइज, आसानी से देखने में आते तो दे आर बीइंग हंटेड बाय द ह्यूमंस, सो लार्ज बॉडी साइज लाइक राइनोसिरोस एंड द लायंस आर बीइंग eliminated, are being extincted due to their large body size because they are easily being observed from the far distance by the humans. Small population size and low reproduction rate. दूसरा फैक्टर होता है कि स्मॉल साइज हो पॉपुलेशन का, बहुत छोटा पॉपुलेशन साइज हो तो धीरे धीरे वहाँ पे अगर 4 स्पीसीज भी खत्म हो जाएंगी उस पॉपुलेशन की तो दैट विल अफेक्ट और दैट विल लीड टू द एलिमिनेशन और एक्सटिंक्शन. सेकेंड वहाँ पे उसके साथ में ये हो जाए कि रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत स्लो हो, लाइक दैट ह्यूमंस हैं या दूसरे बड़े मैमल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन रेट भी स्लो होता है. तो उस केस में क्या होगा कि ये पॉपुलेशन साइज इज स्मॉलर एंड द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज आल्सो स्लोअर. तो उन दोनों कंडीशंस में दे आर मोर प्रोन टुवर्ड द एलिमिनेशन. इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं जायंट पांडा का और ब्लू व्हेल का. नेक्स्ट वन, द हाई ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन. द आर्निज विच अचीव्स द हाई ट्रॉफिक लेवल, जो T3 T4 पे जाते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड द एक्सटिंक्शन लाइक बाल्ड ईगल एंड द बंगाल टाइगर. लास्ट वन, द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड द एक्सटिंक्शन इज द फिक्स्ड हैबिटेट एंड द माइग्रेटरी रूट्स. जिनका हैबिटेट फिक्स है या तो जिनका माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है फिक्स्ड होगा तो क्या होगा, ड्यू टू द बोन फायर, ड्यू टू द कैटास्ट्रॉफ्स दे आर जस्ट गोइंग टू eliminate. And if they are migratory, so in case of migration they have to be eliminated or being fragmented in several small population to the different areas. so वहाँ पे local population कई सारे population में बढ़ जाएगा. okay, so इसके लिए example लेते हैं अपन hooping cranes का और blue whales का. so this is what the biodiversity loss, their causes and the evils, everything we have covered today. This is my humble request to you all. My dear student, you are the leader of future, you are the creator of the future, so just take care of the life, just take care of the future, just take care of yourself. if nature will not be there, so you will not be there. तो सबसे पहले कोशिश करें हम अपनी नेचर को बचाएं. अगर नेचर बचेगी तो हम भी बचेंगे, अदरवाइज ऑलवेज विल क्राई कि प्लीज़ गॉड सेव अस, प्लीज़ गॉड सेव अस, प्लीज़ गॉड सेव अस. और ये सिचुएशन किसके कारण आई है? बिकॉज ह्यूमन्स आर थिंकिंग दैट दे आर द गॉड ऑफ अर्थ. तो सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ आवर रोल टुवर्ड आवर नेचर, व्हाट इज़ आवर रोल टुवर्ड आवर इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ आवर रोल टुवर्ड आवर बायोडाइवर्सिटी. अगर हम अपने रोल को बेहतर समझेंगे सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स व्हाट वी आर फेसिंग टुवर्ड दे माइट बी रिकवर्ड. एक बेहतर एग्जाम्पल है, अभी हमने देखा होगा due to that COVID-19 lockdown, we have observed many of the human activities are suspended for longer time period, and due to that suspended human activities we have observed the air quality index has been improvised. बहुत बेहतर हो गया था. why this is so? So you just think on that, what is your role toward the environment. लगातार रिसर्चेस आ रही थी, लगातार न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो रहा था कि ड्यू टू द लॉकडाउन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिड्यूस्ड एंड दैट रिड्यूस्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ इम्प्रोवाइज द इन्वायरमेंटल कंडीशन. बहुत important है to understand your role. my dear child, you are the student and you are the creator of future, so please don't spoil your future. Save environment, save life. Thank you for the day.